So let's start with DNA structure and some concepts about classification of DNA. What is DNA? Why do we study DNA? What is the importance of DNA for living organisms? And how does this DNA exist in living cells, in living systems? How does this replicate? What is its role in our life? And then how to manipulate that DNA in our individual experiments. जब हम PCR लगाते हैं, sequencing करते हैं, we should have some sensitive DNA recorded. तो थोड़ा सा उसके बारे में knowledge के हवाले से भी बातें. There will be some conceptual recap of some relevant topics. You are welcome to suggest any further topic. You are welcome to suggest क्या special चीज़ को निकाल दें, because as I told, I just try to keep it as simple as possible. थोड़ा सा उसको याद करने के लिए क्या करने के लिए हमने 25 साल पहले पढ़ा था नॉलेज और कितना याद है ये. So DNA and RNA as hereditary material, genome का जो hereditary material है, what is that? उसका concept क्या है? DNA का structure कैसे होगा? How does this actually exist in cells in the form of genome? What are the basic building blocks? Nucleotides comprise constitute DNA, which make up the DNA. And what are the types of bonds, the chemical bonds, which hold those nucleotides together, which hold those building blocks together, which जिसकी वजह से हमारा जो DNA exist करता है, उनकी क्या properties होगी? ये इतना खूबसूरत मॉलिक्यूल है, इतना ऐसा सुपर मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर बन सकता है कि बाकी आप प्रोटीन के लिए कुछ और जो स्ट्रक्चर को आप देखें तो उनको 3D फोल्डिंग में वो कॉम्प्लेक्स हो जाती है कि उनका एक खास हद से साइज बड़ा होना पॉसिबल नहीं है, बट दिस इज नॉट ओके सकती है, इसको जितना मर्जी लंबा करता जाए वो पॉसिबल है. एंड दैट्स बिकॉज ऑफ दीज बॉन्ड्स जो इनको होल्ड करते हैं, जिनको आप उसमें जोड़ के रखते हैं. थोड़ा सा उनके बारे में डिस्कस करेंगे. डीनेचरेशन एंड रीनेचरेशन ऑफ डीएनए, डीएनए रेप्लिकेशन एंड रिपेयर मैकेनिज्म्स एंड म्यूटेशंस इन डीएनए का हम उनको कैसे देखें. म्यूटेशंस में इसलिए डालते हैं बिकॉज़ हम सीक्वेंसिंग का जो पार्ट करते हैं, मोस्टली हम पीसीआर लगाते हैं म्यूटेशंस को डिटेक्ट करने के लिए. तो कौन सी म्यूटेशंस होंगी, कैसे होंगी, what are those insert and deletion of mutations, what are those SNPs or single nucleotide transcriptions, those kind of things. So this is a basic general concept of framework. Okay, hereditary material. So what is the hereditary material? ये क्या चीज होगी? हेरिडिटरी मटेरियल का मतलब ये है कि कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के वो कौन सी ऐसी चीज है जिसमें इंफॉर्मेशन मौजूद है. ठीक है, एज दूसरा टोल नर्वस स्पीच कि जो जीनोम है हमारा, जो डीएनए हमारा को लिंक करता है, हमें लिंक करता है विद वायरसेस इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया माइक्रोऑर्गेनिजम्स, उन सब की जो लिंक करने वाली चीजें होती है. येट उन्होंने ये भी कहा कि इवन जो आपके फ्रेटर्नल ट्विंस भी हैं, नॉट आइडेंटिकल ट्विंस, फ्रेटर्नल ट्विंस या ब्रदर्स या सिस्टर्स, उनके अपने फर्क हैं. दो फर्क बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम वो जीनोम की वजह से, डीएनए की वजह से. तो वो कौन सी इंफॉर्मेशन है जो इसके अंदर आती है, जो इसको कैरी करती है, सो दैट द सेल्स नो व्हाट टू प्रोड्यूस इन द नेक्स्ट जनरेशन. कि हमारे जनरेशन, हमारे बच्चे हमारी तरह होते हैं, बाकी स्पीशीज के बच्चे उन्हीं की तरह होते हैं. सो दिस इज द हेरिडिटरी मटेरियल which contains all the basic essential information which is needed for the continuity of life. So that's most of the times, in most of the cases, that's DNA. In some cases, first suggested targets RNA, and it's true that in some viruses they contain RNA as the genetic material. But in most forms of the life, it's DNA which carries the information, which carries that genetic information, and which is the hereditary material, which is essential for continuity of life, and that to the central dogma of molecular biology. That information flows from one molecule to the next level to the next level, and that keeps on generations after generations are. And that central dogma says that the hereditary material is DNA, which carries that information, and this DNA transcribes that information in the form of messenger RNA. And that mRNA carries that information to cytosol, where an action upon that information is performed, which we all know that this is protein synthesis. That's our central dogma of molecular biology. Am I right? So, what is the cellular organization of the genome? सेल के अंदर जीनोम कैसे पड़ा हुआ है?
जस्ट इमेजिन दिस रूम, ये स्पेस है 3D के अंदर हम जैसे बैठे हुए हैं, इसकी एक लिमिटेड सी स्पेस है, इसके एक लिमिटेड सा एरिया है, इस एरिया के अंदर हम लोग बैठे हुए हैं। अगर आप इसको एज्यूम करें दैट दिस इज न्यूक्लियस एंड दिस न्यूक्लियस कंटेन्स genetic information DNA or RNA, not RNA, DNA basically that contains DNA, जो कि क्रोमैटिन या क्रोमोसोम्स की फॉर्म में होगा, तो कितने लेंथ है जो वहाँ स्टैक है। अगर आप ह्यूमन सेल्स की बात करें तो ह्यूमन सेल्स के इतना मोटा DNA है, अगर आपको सारे को बिल्कुल धागा ओपन करके उसको स्ट्रेच कर दें, जैसे ये एग्जांपल देखो, नी फॉर एग्जांपल ये तार अगर उसको क्वाली करें थोड़ी जगह में आ जाए, बट इसको अगर ओपन करें उसकी लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, बारीक हो जाएगी, लेंथ बढ़ जाएगी। तो दूसरा ये देखिए, इसको स्ट्रेच कर दें सीधा लंबा लेंथ वाइज इसको अरेंज करें, एक सेल के अंदर जितने क्रोमोसोम्स हैं जितनी उनकी लेंथ होगी दैट्स अबाउट 192 सेंटीमीटर्स, 2 मीटर के करीब उसकी लेंथ है, जो एक सेल में होगा उस सेल में जो नजर नहीं आता। सो दैट्स बेसिकली अल्लाह की कुदरत में इस तरीके से रखा हुआ है। अभी आपको इस रूम की मिसाल इसलिए दी कि देखिए ये लेंथ है, अगर फर्स्ट में इसको तो थोड़ी बनना हो जाए, इस लेंथ को अगर इस कारण से उस कारण तक ले जाएं तो इस रूम की लेंथ बराबर तो आ जाएगी। बट अगर उसकी क्वालिटी सुपर क्वालिटी करें, यहाँ से पकड़ें, उधर अटैच करें, मसला इधर करें, मसला इधर ले जाएं, मसला इस तरफ ले जाएं, 3D के तरफ अरेंज कर दें, तो बेसिकली आप इस रूम की लेंथ से मल्टीपल टाइम्स, थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स, इवन मिलियंस ऑफ टाइम्स ज़्यादा लंबी रस्सी या तार इस रूम के अंदर रख सकते हैं। एंड दैट्स हाउ एक्चुअली DNA एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस, कि वो एक लेंथ में सीधा नहीं पड़ा हुआ, बल्कि उसकी क्वालिटी एंड सुपर क्वालिटी folded structures, and that structure basically constitutes the chromatin. And when that cell enters into the replication phase, into mitosis or meiosis, that chromatin condenses together and forms a supercoil, which you can see in microscopes. That's how chromosomes के structures नजर आते हैं। Normal cell life जब perform करता है उसमें chromosomes नजर नहीं आते, cell division की तरह नजर आते हैं, वो मोटे हो जाते हैं और छोटे हो जाते हैं, इसलिए उसमें स्टैक अपने ज़्यादा करते हैं, सुपर क्वालिटी ज़्यादा करते हैं। But normally when a cell performs its functions during most of the time, during interphase, that DNA exists in the form of chromatin. And chromatin is composition of DNA, or basic combination of DNA with proteins. स्टोन प्रोटीन्स हैं प्लस प्लांट स्टोन प्रोटीन्स हैं, जिसकी बेसिक बैकबोन बनाएंगे, जिनके ऊपर सारा DNA आपका सेफली एंड स्टेबली कनेक्ट रहेगा। Because you can imagine that the length of the chromosomes, for example, in case of human, you have 22 plus X. जो फर्स्ट क्रोमोसोम नंबर 1 है, क्रोमोसोम नंबर 1, उसकी लेंथ तकरीबन 250 mg के करीब, 250 mg, mg means मेगाबेसिस, ठीक है, वो तकरीबन 2.5 करोड़ न्यूक्लियोटाइड्स हैं, जो आपस में एक लीनियर धागे की सूरत में, जिंदगी की डोर की सूरत में आपस में कनेक्टेड है। अब इतना लंबा DNA का होगा तो सेफली स्टेबली कैसे एग्जिस्ट करेगा, उसकी रेप्लिकेशन भी होनी है, उसकी कॉपीज भी बननी है, उसकी ट्रांसक्रिप्शन भी होनी है, उसने सिक्योर भी रहना है, उसके अंदर वो सेफ नहीं रहेगा तो फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे, पीसेस बन जाएंगे। अगर आप पीस की सूरत में उसको रख देंगे तो उसकी रेप्लिकेशन नहीं होगी, रेप्लिकेशन नहीं होगी, नेक्स्ट सेल में DNA लॉस हो जाएगा, जीनोम लॉस हो जाएगा। तो इस सारे स्ट्रक्चर को होल्ड करने के लिए those are the proteins which bind to DNA and keep it in safe and secure environment, and those proteins are histone proteins as well as non-histone proteins, and these proteins keep the DNA together in the form of chromatin, and those parts of DNA which are open at one time but transcriptionally active parts जिनके ऊपर जीन से एक्सप्रेशन हो रही है, those parts are called euchromatin, and the other parts जो कि बंद हैं, जो बिल्कुल स्टैक टुगेदर हैं, वो उसको कहते हैं हेटेरोक्रोमैटिन। हेटेरोक्रोमैटिन की फॉर्म में जब DNA होगा उसके एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन जब सेल डिवीजन होती है उस वक्त सेल में डिवाइड करना है, तो उससे पहले जीनोम को अपने रेप्लिकेट करके रखना है, तो दैट DNA शुड बी इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। तो जो क्रोमोसोम्स हैं उनकी सुपर क्वालिटी इतनी ज़्यादा होती है कि एक क्रोमोसोम का आप विड्थ नापते हैं, ऐसे उसको क्लास सेक्शन में डिवाइड करें, उसके जो साइज तकरीबन 600 नैनोमीटर बनता है। यूक्रोमैटिन में जब DNA डबल स्टैंडर्ड DNA होगा, न्यूक्लियोसोम से आप हटा के बात करेंगे, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव DNA की बात करेंगे, उस वक्त आप DNA क्रॉस सेक्शन में यूं करके देखें, उसका साइज होता है 2 नैनोमीटर। सो बेसिकली यूक्रोमैटिन तब होगा जब DNA की बिल्कुल ओपन कन्फर्मेशन होगी, उसकी जो
विड्थ है उसकी जो पिच है दैट विल 2 नैनोमीटर। जब वो उसके ऊपर बाइंड करेगी हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर, जब राइबोसोम्स बनेंगे, राइबोसोम्स बनते हैं ना न्यूक्लियोसोम्स। जब न्यूक्लियोसोम्स बनते हैं उसके बाद उनकी जो पिच है, उसका जो उनकी विड्थ है दैट इज 10 नैनोमीटर। आफ्टर 10 नैनोमीटर फर्दर क्वालिंग एंड सुपर क्वालिंग होगी तो स्ट्रक्चर बनेगा 30 नैनोमीटर। और 30 नैनोमीटर की फर्दर आप क्वालिंग एंड सुपर क्वालिंग करें तो फिर स्ट्रक्चर बनता है 600 नैनोमीटर, which we now are as chromosomes. Euchromatin is that conformation of DNA which is transcriptionally most active, and for transcriptionally active part the DNA should be in such a way that the RNA polymerase can recognize the promoter sequences and bind to the different promoter sequences. For that आपने DNA को ओपन करके रखना है, यूट्रोमेटिन की फॉर्म में रखना है। जब यूट्रोमेटिन होगा उस वक्त सुपर क्वालिटी इतनी ज्यादा होती है कि आपके जो प्रोमोटर्स हैं वो सारे के सारे बंद हैं। उन बंद प्रोमोटर्स के ऊपर आपने पोलिमरेज सीक्वेंस रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता कि मैंने कहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करनी है। सो ईदर फॉर आरएनए पोलिमरेज और फॉर डीएनए पोलिमरेज, व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, फॉर कॉपिंग ऑफ द डीएनए इन्फॉर्मेशन, द डीएनए शुड बी इन द फॉर्म ऑफ ओपन कंफर्मेशन व्हिच इज कॉल्ड एज यूक्रोमेटिन, एक्टिव क्रोमेटिन, बिकॉज़ वो उस वक्त ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। हेटेरोक्रोमेटिन हम तब कहते हैं जब वो क्रोमेटिन एक्सप्रेस नहीं कर रहा होता। क्यों नहीं कर रहा होता? कंडेंस फॉर्म के अंदर है। कंडेंस फॉर्म के अंदर जब होगा उसके ऊपर आगे प्रोमोटर सीक्वेंसेस अवेलेबल नहीं होंगे, फीड नहीं होंगे, आरएनए पॉलीमरेज विल नॉट बी एबल टू रिकॉग्नाइज एंड बाइंड दोस सीक्वेंसेस। सो दैट्स व्हाई ओपन कंफर्मेशन इज क्रोमेटिन, कंडेंस फॉर्म इज हेटेरोक्रोमेटिन। ओके, सिस्टर क्रोमेटिन्स जो मैं क्रोमोसोम्स की बताया दैट कंटेन 2 आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ डीएनए आफ्टर रेप्लिकेशन, और सिस्टर क्रोमेटिन्स तब बनेंगे जब डीएनए माइटोसिस फेज में जाएगा, उससे पहले सिस्टर क्रोमेटिन्स बनेंगे, सो दैट एवरी ईच सेल, ईच प्रोजेक्टिव सेल will receive one copy of DNA. During interphase, chromosomes are arranged in the form of euchromatin and heterochromatin. Euchromatin is that part which is transcriptionally active, and heterochromatin is that part which is transcriptionally inactive. इसके ऊपर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल इसकी इजी मिसाल ये है कि यूनिवर्सिटी के अंदर सारे फंक्शन पॉसिबल हैं, तो गेट के अंदर आ सकते हैं, तो गेट ब्लॉक कर दिया जाए तो फिर क्या होगा? जरा काम नहीं कर सकते, एंटर नहीं हो सकते। तो यही चीज इसकी कंफर्मेशन है, यानी जब ओपन पड़ा होगा और प्रोमोटर्स ओपन होंगे, बिकॉज़ आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू इट्स स्पेसिफिक सीक्वेंस में चेंज कर दे, म्यूटेशन कर दे, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर सके, पर सेकेंड में बाइंड कर सकते। ओके, सो दिस इज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर हम इसलिए कहते हैं, इसलिए कि डीएनए we all know that DNA normally exists in the form of two strands, two helical strands which are intertwined. These two strands are intertwined, coiled together. Okay, these strands are coiled together. Why these two strands are coiled together? This is so important concept. अगर आपने जीनोमिक्स के बारे में या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में इसको अंडरस्टैंड करना हो कि ये जो कॉइलिंग स्टार्ट क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, और फिर यही कंस्टिट्यूट करेगी इसकी एक्टिव फॉर्म के अंदर और इनएक्टिव फॉर्म के अंदर और फर्दर सुपर कॉइलिंग होगी। इसको अगर अंडरस्टैंड करना हो, आई ऑलवेज सजेस्ट माय स्टूडेंट्स कि आप तकरीबन 5, 7, 10 न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस अपने पास जनरेट करें, जैसे कहते हैं AGTC, AGT फॉर एग्जांपल। फिर आप उसका स्ट्रक्चर ड्रा करें। जब आप उसका स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे then you'll be able to actually see the positions of those atoms. जहाँ पर बाइंडिंग हो रही है, बाइंड कर रहे हैं, फिर आपको लगेगा कि ये स्ट्रक्चर बनता है ऐसे कि ये लीनियरली अरेंज हो, it will look like a ladder, staircase. स्टेप इस ऊपर को नजर आएगा, ये न्यूक्लियोटाइड इधर है, दूसरी इधर आ रही है, इधर आ रही है, इधर आ रही है। तो अगर ऐसे ही चलता है सारा उसका स्ट्रक्चर, तो कितनी लेंथ तक जाएगा, तो उसका जो नेचुरल वे है तो स्टैक करके रखेगा। वो ये इसके अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट डालेंगे तो फिर वो अपने एक्सेस के राउंड रिवॉल्व करा देगा और सारा डीएनए आपको एक एक्सेस में मिल जाएगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज यही जो कंसेप्ट है वो आपके मेजर एंड माइनर ग्रुप्स बनाता है, और जो मेजर एंड माइनर ग्रुप्स हैं ये इंपॉर्टेंस ये है कि जो
बैकबोन है आपके साइटों के ऊपर, दिस इज फास्फोडाइस्टर बॉन्ड्स, दैट दिस बैकबोन इज कंस्टिट्यूटेड बाय फास्फोडाइस्टर लिंकेज, इट links phosphate and sugar or ribose sugars together, and the nucleotides are actually towards the inside of this atom. अगर वो अंदर की तरफ है, इस साइड पर है, यहाँ पर इसके ऊपर जब अटैचमेंट होगी प्रोमोटर के ऊपर सीक्वेंसेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए जितने भी प्रोटीन होंगे, इफेक्टिव मॉलिक्यूल्स होंगे, वो इन सीक्वेंसेस को रीड करेंगे, पढ़ेंगे। और रीड तब करेंगे जब ये थोड़ी सी ओपन कंफर्मेशन में होगा, उनको लग जाएगा कि ये यहाँ पर ANT है, यहाँ पर GH है, ठीक है। सो ये कुछ प्रोटीन्स हैं जो उसके माइनर ग्रुप को बाइंड करती हैं, और कुछ प्रोटीन जो उसके मेजर ग्रुप को बाइंड करती हैं। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करना हो तो हम बहुत छोटा सा आप अपनी मर्जी का साथ में मर्जी करें 10 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस लिखिए, उसका स्ट्रक्चर ड्रा करें, आपको उसका ओवरऑल सारा स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर ये जो अरेंजमेंट है इनकी न्यूक्लियोटाइड्स वो इतनी खूबसूरत तरीके से है कि ये मैथमेटिकल मॉडल को फॉलो करता है। मैथमेटिक्स है मींस ये लॉजिक, एंड वंस यू रिकॉग्नाइज दिस लॉजिक आपको समझ आएगा, पता चलेगा कि इसको अंडरस्टैंड करना, कॉम्प्रिहेंड करना बड़ा इजी है, ठीक है। उस लॉजिक के अंदर क्या है कि एक जो टर्म है यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट जो टर्म दैट कंटेन्स अबाउट हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स, 10 न्यूक्लियोटाइड्स, but in different forms like bDNA and aDNA and cDNA ये 10, 11 और 12 ये ट्विस्ट आप थोड़ा सा कंप्रेस करते हैं, तकरीबन 10 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, और इसकी जो टोटल ओवरऑल हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कितने बनती है 34 एंगस्ट्रॉम, यस 34 एंगस्ट्रॉम इज इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी नैनोमीटर्स, तो इसको नैनोमीटर की पावर में कितने हो गए 3.4 नैनोमीटर की इसकी ओवरऑल हाइट बनेगी, जिसके अंदर 10 न्यूक्लियोटाइड्स होंगी। तो इसका मतलब ये है कि इस सीडी के अंदर जो स्टेप्स बने हुए हैं, हर एक स्टेप का जो दूसरे से फासला है वो कितना होगा 0.34 नैनोमीटर, 3.4 एंगस्ट्रॉम। Next thing which is important is that these two terms are in anti-parallel way. How do you call anti-parallel? तो anti-parallel क्यों चल रही होगी? Polarity को कैसे पता चलेगा? So the polarity was to define होगी because on one side of the DNA strand will have a phosphate group, 5 prime it's a phosphate group, and that's the last nucleotide. The free group on this ribose will be, and this pentose will be hydroxyl group, OH group. So this particular group and this particular group, these are important in next binding. वो क्यों important है कि next nucleotide अगर आप यहाँ पर bind करवाना चाहें, तो उसका ये वाला जो OH group है, वो उसके next phosphate से attach हो जाएगा. So this is that's why it's called phosphodiester linkage, because diester ester को एक esterases क्या होती है, ester linkage क्या होती है, which leads to oxygen. तो यहाँ पर ऑक्सीजन यूज हो रही है, यहाँ पर एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड इधर है, that's why it's called diester. फॉस्फेट की वजह से that's why it's called phosphodiester bond. तो न्यूक्लियोटाइड जो नेक्स्ट ऐड होगा वो इस तरह ऐड होगा, इस तरह ऐड होगा। अगर हम इसमें फर्दर एक्सटेंशन करना चाहें, अगर हम इसको फर्दर एक्सटेंड करना चाहें तो डायरेक्शन क्या होगी? ये करना नहीं वाला तो इसका 3 प्राइम एंटी जो OH ग्रुप है, तो नेक्स्ट कौन सा ग्रुप अटैच होगा? फॉस्फेट ग्रुप अटैच। उसका जो नेक्स्ट अगला होगा उसको कौन सा OH ग्रुप वो खाली कर देगा, यानी कहीं ना कहीं जो लास्ट में प्रोडक्ट होगा उसमें एक OH ग्रुप लाजमी रहेगा, ठीक है। मतलब ये हो नहीं सकता कि आपको दोबारा से फॉस्फेट हो जाए नेचुरली एग्जिस्टिंग डीएनए के अंदर। सो एक एंड फॉस्फेट होगा, इस एंड के ऊपर OH ग्रुप होगा, तो इसी स्टैंड के ऊपर अगर इस स्टैंड के यहाँ पर फॉस्फेट है तो इसी स्टैंड के यहाँ पर OH है, और यहाँ पर फॉस्फेट होगा उसके यहाँ पर OH होगा। That's why it runs in anti-parallel way. ये opposite direction में रन करते हैं। That's why we call it we know its polarity or its direction. Alright, so what are the building blocks of DNA? DNA बना किस चीज़ से हुआ है? In most of the organisms, like starting from bacteria up to the plants and animals and humans, the building blocks of DNA are 4 types of letters or nucleotides. Adenine, guanine, thymine and so तो मतलब कि RNA के अंदर thymine will be replaced with uracil, ठीक है। बाकी होंगे वो 4 लेटर्स। दूसरा जो फर्क होगा RNA और DNA में वो क्या होगा इस ग्रुप के ऊपर,
which is basically two prime carbon of this first of this rose sugar. यहाँ पर in case of RNA ये क्या होगा, OH ग्रुप होगा. In case of DNA it's H, जब पर ऑक्सीजन नहीं है. अब इस छोटे से फर्क से क्या मतलब ऑक्सीजन होने के कारण से क्या फर्क पड़ेगा? अगर यहाँ पर इसको हम निकाल दें तो क्या फर्क पड़ेगा? फॉस्फोरेस्टर लीकेज नहीं बनेगी. और ये हम यूज करते हैं जब हम सेलुलर सीक्वेंसिंग करते हैं. उससे पहले हम पीसीआर को चेन टर्मिनेशन मेथड से टर्मिनेट कर रहे हैं. एंड ड्यूरिंग दैट टर्मिनेशन स्टेप हम इसकी बजाय OH की बजाय कौन सा रसूल यूज करेंगे? H यूज करेंगे. H यूज करेंगे वहां पर हम लोग परमानेंटली ब्लॉक कर दिया. इससे आगे न्यूक्लियोटाइड नेक्स्ट ऐड नहीं हो सकता बिकॉज़ फॉस्फोरेस्टर बॉन्ड नहीं बन सकता. ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं. इनका स्ट्रक्चर है AGTHC का स्ट्रक्चर. आप इसके अंदर कार्बन और नाइट्रोजन के एलिमेंट चेक करें और यहाँ पर वो हाईलाइट किए हुए वाले पॉइंट्स थे जहाँ पर एक्चुअली जो हिस्सा लेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए. ये दो बनेंगे. वो दो काम करेंगे. एक ये वाला नाइट्रोजन यूज होगा, एक ये वाला नाइट्रोजन यूज होगा. ये जो पॉइंट रेड हाईलाइट किए हुए आप टी में चेक करने से दो हैं और इसमें दो. ठीक है. सो ये वो आइटम्स हैं कि जहाँ पर एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी. G और C में तीन होते हैं. ये वाला यूज होगा. मतलब इसका मतलब है कि एक ऑक्सीजन यूज होगा ये वाला और दो नाइट्रोजन यूज होंगे. इनके साथ जो H अवेलेबल है वो आपस में हाइड्रोजन शेयरिंग करेंगे और इस वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड आपस में बनेगा दो स्ट्रैंड्स के दरमियान which will keep two strands together. That leads to this slide that the type of bonds which are present in the DNA. Covalent bonds and covalent bonds. तो हमने पहले बात की phosphodiester bonds as well as N-glucosidic bonds which unite together, which keep together phosphate and नाइट्रोजन बेस पे शुगर होगी. फॉस्फेट के साथ नाइट्रोजन बेस पे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं. ठीक है. उनको जो बॉन्ड बनाएगा दैट विल बी N-glucosidic bond. ठीक है. इसकी वन कार्बन के ऊपर 6 कार्बन का बॉन्ड अटैच होगा. ये बॉन्ड इस केस के अंदर इन बेस के साथ अटैच होगा. ये दिस इज N-glucosidic bond और फॉस्फेट के साथ अटैच होगा दैट इज phosphodiester bond. So all these bonds are covalent bonds. These are strong bonds. इनको ब्रेक करना इजी नहीं है. एंजाइमेटिक प्रोसेस है. इन सेल कोई भी जब आप अटैचमेंट करेंगे there are certain conditions of pH, there are certain conditions of presence of raw material as well as those enzymes which will catalyze this reaction of adding the products together. But जब दो न्यूक्लियोटाइड दो स्ट्रैंड्स आपस में मिलेंगे तो वो लिंक कैसे होंगे? तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स. Phosphodiester bond can potentially join together an unlimited number of nucleotides. क्या जितने मर्जी न्यूक्लियोटाइड्स आगे लगाते हैं उसी फैशन के अंदर ये पॉसिबल है. प्रोटीन के केस में या ये सब जो अदर मैक्रोमोलेक्यूल्स में प्रोटीन से आते हैं. बट अगर आप उसकी लिपिड्स की बात करते हैं वहाँ पर भी एक लिमिट है, एक नंबर है, उससे आप बियॉन्ड नहीं जा सकते. इसलिए कि स्ट्रक्चर और उसकी प्रोटीन ऐसे कॉम्प्लेक्स हो जाएगी. नेक्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स का ऐड होना पॉसिबल नहीं होगा. बट ये जो डीएनए है वो इस बात से मावरा है. अब देखिए कितनी बड़ी ब्यूटी है इस पूरे सिस्टम की. जब हम न्यूक्लियोटाइड्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स की बात करते हैं तो बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब क्या है? मतलब ये कि जो सारी इंफॉर्मेशन है, ये जो सारा कुछ लिखा हुआ है, ये तकदीर लिखी हुई है, इसमें सिर्फ 4 लेटर्स इस्तेमाल होंगे, सिर्फ 4 हर्फ इस्तेमाल होंगे. तो A T G C. जब बैक्टीरिया की तकदीर हो या हमारी या प्लांट्स की. ठीक है. सो ये जो एवोल्यूशन की पॉइंट से ख्याल है कि नहीं साइंस एवोल्यूशन में साफ सुथरा टाइप करते हैं. मेरा तो ये ख्याल है कि ये जो बेस है वो आपकी साइंटिफिक सबसे बड़ा एविडेंस है कि बनाने वाला है. इसी जुबान की हमारी बैक्टीरिया की एक जुबान. ठीक है. जैसे हम बाकी इंग्लिश की बात करते हैं A to Z कितने लेटर बनते हैं? 26. और अगर उर्दू की बात करते हैं अलग से ये सब तो कितने बनते हैं? 37. ठीक है. तो गिनती की बात करते हैं 0 to 9 कितने बनते हैं? तो अगर इनको मिलाते जाते हैं, अगर गिनती की बात करते हैं, काउंटिंग की बात करते हैं, तो ये 0 to 9 10 आपके डिजिट्स 10 आपके पैदा उनको मिलाते हैं बिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड जिलियंस तक पहुंच जाते हैं. अनलिमिटेड इटर्निटी तक पहुंच जाते हैं. ऐसे ही जितनी आपको उर्दू की बुक्स दीवाने वाला बात जो कुछ नजर आती है वो सिर्फ 37 लेटर्स जिनकी कॉम्बिनेशन जिनका सीक्वेंस
इंफॉर्मेशन को चेंज करता है। ठीक हो गया? यही आपके 26 लेटर्स हैं इंग्लिश के, उन्हीं की तरतीब आप आगे पीछे करते जाएं, उन्हीं में से वो बिल्डिंग ब्लॉक्स यूज होंगे, मतलब डिफरेंट बनता है। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 लेटर्स लिखे हुए, लेकिन अगर किसी अरेंजमेंट में लिखे हैं तो हम इसको नहीं करेंगे। अगर आप इसके अरेंजमेंट को चेंज कर देंगे, किसी कर दें तो मतलब चेंज हो जाएगा, होंगे वही चीज़, पर मतलब चेंज हो जाएगा। इसके अंदर सिर्फ 2 है, इसका मतलब डिफरेंट है, इसका मतलब डिफरेंट। सो बेसिकली ये सारा कुछ बताने का मकसद ये है कि इनके जो लेटर्स हैं वो सारी के सारी आपके एंडलेस इटर्निटी तक जितनी इंफॉर्मेशन पॉसिबल है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स की वजह से, और जीनोम के अंदर लाइफ डाइवर्सिटी के अंदर जो ये सारी इंफॉर्मेशन है दैट इज only because of these 4 nucleotides which is now called as A, G, T and C। और अगले जो न्यूक्लियस सिस्टम के अंदर यहाँ पर देखिए ये बीच में स्पेस है, हमें पता चला कि ये नेक्स्ट बात लिखी है, अगली बात लिखी है, बीच में से फुल स्टॉप आ गया, सेंटेंस कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट पैराग्राफ में चले गए, अगली बात शुरू हो जाएगी। आपको स्ट्रक्चर नजर आता है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर नजर आता है। डीएनए के केस में ऐसा नहीं, एक सिरे से अगले सिरे तक अगर 250 करोड़ न्यूक्लियोटाइड्स अटैच है तो कमाल है, बीच में स्पेस नहीं। जो आपको एन-ग्लूकोसिलिक बॉन्ड और फास्फोडाइस्टर बॉन्ड है वो वैसे का वैसा चलेगा, कोई फर्क नहीं। ऐसा नहीं है कि एक जीन को दूसरे जीन के बीच में थोड़ा सा पार आ जाए, बीच में कोई फॉर एग्जांपल हम कहीं पूरे में टच हो, दोनों जीन्स को मिला के चल रहा है कि ये अलग जीन है, ये अलग जीन है, ऐसी कोई चीज़ नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। येट इस सारे सिस्टम के अंदर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स जीन्स जो हम कैरी करते हैं वो डिफरेंट है कंपैरेटिवली। सो दिस ऑल इज बिकॉज ऑफ पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ these nucleotides, the sequence of these nucleotides, जिनको हम सीक्वेंसिंग से डिटरमिन करते हैं। सीक्वेंसिंग का मतलब आप उस तरतीब को पढ़ें, उसमें लिखा क्या है, सीक्वेंसिंग इसलिए करते, इसलिए मैं ये बताने का क्योंकि उर्दू का शायर था वो क्या था कि जिंदगी क्या है, अनासर में ज़रूरत करते, अनासर में ज़रूरत करते, मौत क्या है, इन्हीं अज्जा का परेशान नहीं बिखर जाना, चेंज हो जाना। तो अब डीएनए के स्ट्रक्चर को परेशान कर देंगे, तोड़ देंगे, ठीक है। सो बेसिकली वो सीक्वेंस है व्हिच इज इंपॉर्टेंट, इट कैरीज ऑल दिस इंफॉर्मेशन, वो सीक्वेंस कंटीन्यूअसली चला जा रहा है। अब सीक्वेंस को रीड कौन करेगा, एंजाइम। अगर वो ट्रांसक्रिप्शन करनी होगी तो आरएनए पॉलीमरेज, अगर रेप्लिकेशन करनी होगी डीएनए पॉलीमरेज, वैसे स्टेबलाइज करना होगा तो डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स है, डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स का अपना काम है। ये इतना खूबसूरत निज़ाम जो अल्लाह ताला ने बना के रखा हुआ है इस इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करने के लिए। और दूसरी बात है कि इसके अंदर जो रेप्लिकेशंस होती है डीएनए के अंदर कितनी दफा काफी होती है वो बेशुमार होती है। फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन पर्सन जैसे हम सारे बंदे बैठे हैं, वी कंटेन ट्रिलियंस ऑफ सेल्स एंड मेजॉरिटी ऑफ द सेल्स कंटेन जीनोम, जो कि जो पहला डीएनए बनता है, जो पहला सेल बनता है, जो ज़ाइगोट बनता है, उसकी फर्दर रेप्लिकेशन से चलता है। तो वही इंफॉर्मेशन काफी होती है, वही इंफॉर्मेशन फिर काफी होगी, फिर काफी होगी। एक सेल से 2 बनेंगे, 4 बनेंगे, 8 16 32 64 128 256 512 528 20 ठीक है, ठीक है चलता रहेगा। एंड until undesignated trillions of cells in our body। इसका मतलब ये है कि जो इंफॉर्मेशन है वो फेथफुली काफी होनी चाहिए कि हर सेल डिवीजन के टाइम के ऊपर अब जो इंफॉर्मेशन है उसकी तरतीब चेंज आती रहेगी, फिर क्या होगा, तो नेक्स्ट सेल्स के नेक्स्ट जनरेशंस के अंदर वो म्यूटेशंस फर्दर पास होती जाएंगी। सो इसका मतलब ये है कि जो रेप्लिकेशन है उसके अंदर आपने प्रूफ रीडिंग का काम भी करना है, एरर्स को बचाने वाला काम भी करना है। सो जीनोम हैज दिस प्रूफ रीडिंग एंजाइम जो उसकी इंफॉर्मेशन को फेथफुली काफी होने से यहाँ पर गलती है कि इसको ठीक करें, इट इज अ पे मैकेनिज्म। और उससे जो बच जाएगी उनको म्यूटेशन जो स्टेलाइज होती है करती है, एक फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है बट वो फाउंडेशन होती है नेक्स्ट एवोल्यूशन की कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ इन अदर फॉर्म्स के लिए वो एक फाउंडेशन प्रोवाइड। ओके, सो वी बैक टू पॉइंट जो कि बोलते हैं बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड्स और हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाइड्रोजन बॉन्ड्स दो स्ट्रैंड्स ऑफ यूनाइट करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड्स मैंने बताया कि वो एंजाइमेटिकली बनेंगे, खत्म होंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंजाइमेटिकली भी बनेंगे प्लस क्योंकि वीक बॉन्ड्स हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स, तो इसको आप डीनेचर टेम्परेचर से भी कर सकते हैं।
ये चेंज करने से भी कर सकते हैं और स्ट्रेंथ चेंज करके भी कर सकते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम प्रोवाइड करते हैं जब हम पीसीआर करते हैं। पीसीआर के अंदर थर्मोसाइक्लिंग जब हम करते हैं तो मतलब एलिमेंट करेंगे डबल स्टैंड क्या हो जाएगी, जब टेम्परेचर लो करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोबारा से So this is denaturation and renaturation of DNA. तो DNA पर denature के लिए denature कैसे करता है? This graph shows the temperature. If you increase the temperature, after a certain point, DNA will start melting down. वो क्या होना शुरू हो जाएगा? खुलना शुरू हो जाएगा, वो denature होना शुरू हो जाएगा, single strand की फॉर्म होना शुरू हो जाएगा, and after a certain point, it will be completely existing in the form of open conformation or single stranded DNA. वो जो टेम्परेचर है, जो अपर लिमिट है, तकरीबन का नंबर 90 डिग्री है। यहाँ से स्टार्ट होगा डेनेचरेशन तो तकरीबन 80 डिग्री है। About at this temperature, half of the genome will be in open conformation, somatic temperature. ठीक है? ये सिंगल स्ट्रैंडेड DNA सारे का ओपन है, but डबल स्ट्रैंडेड DNA इसको ऐसे एग्जिस्ट करेगा। So that means we can basically utilize this condition in lab, in vitro reactions. नेचुरली तो एग्जिस्ट करेगा नहीं फॉर्म ऑफ, जब हमारे सेल्स में होगा तो फिर सेल्स में भी क्या करता है, बट वो जो पीसीआर है वो सारे जीनोम की एप्लीकेशन, ठीक है, और एंजाइम्स कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि हम थोड़ी देर के बाद जाकर 94 डिग्री सेंटीग्रेड पर बैठ जाए, गर्म जगह पर बैठ जाए, यही फिर मास्टर उठे और हम बराबर जगह पर बैठ जाए, ऐसे नॉर्मली करते हैं नहीं होता। सो इसका मतलब है कि नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर 37 डिग्री सेंटीग्रेड की टेम्परेचर हो रहे हैं, दैट्स बिकॉज ऑफ एंजाइमेटिक environment। But actually ये जो प्रॉपर्टी है डीएनए की, इसको हम एक्सप्लॉइट करते हैं इन विट्रो रिएक्शंस के ट्यूब्स के लैब के। तो हम टेम्परेचर को ऊपर करेंगे या टेम्परेचर को कम करेंगे तो डीएनए डीनेचर या रीनेचर होगा, और डीनेचर या रीनेचर होने के दौरान हम फर्दर काम को भी करते हैं, जैसे प्राइमरी टाइप तो तभी हो सकता है जब डीएनए डीनेचर होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, एंड और एक्सटेंशन दो स्ट्रैंड दोबारा बनते हैं, फिर हम उसको फिर दोबारा डीनेचर कर दें। आप इस तरीके से इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लॉर कर सकते हैं। Let's discuss something about DNA replication. Why we are doing all this? Because we will apply these concepts in our sequencing process. So that's why I'm just trying to recap the concepts of DNA. So DNA replication means making another copy of DNA which is already available. So as I discussed that we are made up of trillions of cells, and how those cells are generated because of DNA replication. Because we have to copy that information into a new cell, and that new cell, when it will die out or when it will divide, in both cases, when the cell cycle will complete, in both cases, when it will divide, it will copy its information into another set of DNA or genome, which will eventually go into new cells. So this is DNA replication process. DNA replication means making another copy of DNA. Watson and Crick were those two intelligent guys who proposed this model of DNA replication. They actually proposed that it's a double helical structure of the DNA which contains two intertwined anti-parallel strands. Their paper is a masterpiece. If anybody got a chance to go to that paper, it's freely available over the internet. If somebody has not read that paper, I would strongly suggest that please do it, because it's a masterpiece. It's an art to write about science. Science करना science है, उसको present करना art है, ये आपका हुनर है कि आप उसको पेपर की फॉर्म में present कैसे करते हैं। तो उनकी जो writing है, वो एक art है, वो एक बहुत खूबसूरत एक piece of writing, छोटा सा पेपर सिर्फ 2 पेजेस का, सिर्फ 2 पेजेस का। जो मास्टरपीस था, जो कि डिस्कवरी थी, जिस पेपर को बाद में वर्ल्ड प्राइज दिया गया, वो उस पेपर को जरूर पढ़ें। In that paper proposed that DNA is basically double helical structure. So when it will replicate, how the process of replication will occur, how the information present in these two strings or strands of DNA will be faithfully copied to newly formed strands. And one way could have been that, for example, if this is double helical structure, and this information is copied and 2 new strands are made. So these 2 strands, which are the parallel strands, will go to one cell,
and these two strands which are newly synthesized will go to another cell. So that might have been one way. But they said that it's not the case, it's a semi-conservative mode of replication. What does that mean? Semi-conservative mode of replication means that in a newly synthesized strand, for a strand to be newly synthesized, there must be one parental copy and one new copy. And in this case as well, one parental copy and one new copy of DNA. And how is that possible to faithfully copy this information? This was made possible because we know that in these nucleotides, if you actually see the frequency of those nucleotides, actually it's a Chargaff rule. It says that the frequency of purines and pyrimides is equal. ऐसे ना प्यूरिन्स और पायरिमिड्स के इक्वल, ठीक है? सो इसका मतलब ये है कि जितनी ये बात बल्कि जितनी ए है उतनी बी है, ए और सी का बराबर ए एंड टी बराबर जी एंड सी बराबर, ठीक है? ए एंड टी बराबर होंगे, जी एंड सी बराबर होंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर इस स्टैंड के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक count is nucleotide 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 for example if this is 100, तो अगर 100 आपके पास टोटल न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो पेयर्ड हैं इसके अंदर, तो जितनी A होगी उतनी क्या होगी G होगी, और जितनी G है उतनी क्या होगी C होगी। क्यों? उसकी रीजन ये है कि A हमेशा पेयर करेगा C के साथ और C हमेशा पेयर करेगा G के साथ। अब अगर ये रूल अगर आपको समझ आ जाए तो दैट मीन्स अगर हमारे पास सिंगल स्ट्रैंड का सीक्वेंस मौजूद हो तो दूसरी स्ट्रैंड का सीक्वेंस हम खुद से देख सकते हैं, देख सकते हैं। दैट मीन्स एक स्ट्रैंड होगी दैट विल एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड। जो इसके ऊपर लिखा हुआ है उसका कंप्लीमेंट्री इस रूल के मुताबिक ये था, अगर आप इसको ओपन करें लाइक द टू स्ट्रैंड्स आर ऑपोजिट, आप इसे ओपन करते हैं तो दो स्ट्रैंड्स सेपरेट हो जाती हैं, उनमें से ईच स्ट्रैंड विल एक्ट एज template for the synthesis of a new strand. And actually ऐसा नहीं होता कि दोनों strands एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, because we know that there is these two strands are running in anti-parallel way. So अगर एक ऊपर जा रही है दूसरी नीचे आ रही है, तो अगर ओपन हो रही है तो समझ लें कि एक वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। और DNA synthesis के बारे में एक क्वेश्चन था, यहाँ से एक से पूछा था देखना चाहिए कि देखिए हमने पहले बात की कि DNA एप्लीकेशन यहाँ पर हमने बात की कि दिस इज OH ग्रुप एंड दिस इज फॉस्फेट ग्रुप। तो हमने ये बात की थी कि जो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा वो किधर ऐड होगा, यहाँ पर होगा। अब थ्योरेटिकली इट्स पॉसिबल, तो यहाँ पर भी तो आ सकता है कि नहीं आ सकता। ये फॉस्फेट है, अपने का OH यहाँ पर लगा देना, नहीं आ सकता थ्योरेटिकली, आ सकता है ना। लेकिन ये OH है, तो मैं इस ग्रुप को यहाँ से उठा के इधर रख दूँ इसके ऊपर, तो फॉस्फेट दरमियान में वो ये नहीं आ रही वाला आ सकता है कि नहीं आ सकता, बट ऐसा होता नहीं। क्यों नहीं होता? इसलिए कि सिस्टम इवॉल्व हुआ इसको बनाने के लिए वो एंजाइम्स, पूरी एंजाइमेटिक प्रोसेस है, वो एंजाइम्स होंगे, पॉलीमरेजेस होंगे जो पॉलीमराइजेशन का काम करेंगे, which will add new nucleotides to the growing nucleotide chain, and that addition is only possible in one way, and that's यहाँ पर थ्योरेटिकली पॉसिबल है बट एक्चुअली पॉसिबल नहीं है। उसकी रीजन ये है कि एंजाइम्स किधर ऐड नहीं कर सकते, ठीक है? डीएनए सिंथेसिस डीएनए रेप्लिकेशन के लिए रॉ मटेरियल के डीएनटीपी ट्राइफॉस्फेट ग्रुप, ये हमारे पास एक फॉस्फेट है, मोनोफॉस्फेट, ठीक है? रॉ मटेरियल इज ट्राइफॉस्फेट इन द फॉर्म ऑफ ट्राइफॉस्फेट। अगर आपको ट्राइफॉस्फेट रॉ मटेरियल को एक बोतल में डाल के टेबल के ऊपर रख दे तो आपस में अटैच हो जाएंगे? नहीं, तो भी डीएनटीपीज ही रहेंगे, बिकॉज़ जैसे आप डीएनटीपीज को पीसीआर में यूज करते हैं ना, तो ओके डीएनटीपीज तो इंटियां तो इंटियां रहेंगी, बिल्डिंग ब्लॉक्स तो बिल्डिंग ब्लॉक्स ही रहेंगे, वो आपस में ऐड नहीं हो सकते बिकॉज़ जब तक एंजाइम जब तक टेम्पलेट अवेलेबल था वो ऐड नहीं हो सकते। और इस एडिशन के लिए जो एंजाइम ऐड करेगा डीएनटीपी में से दो फॉस्फेट ग्रुप यहाँ से उतारेगा, पायरोफॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करेगा, और जो एनर्जी रिलीज होगी वो नया बॉन्ड बनाने के लिए यूज होगी। तो ये बड़ा टाइटली कंट्रोल्ड रेगुलेटेड मैकेनिज्म है, प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि बस रैंडमली आप रखते हो सारा कुछ ऐड हो नहीं सकता, ठीक हो गया? सो इसलिए इसकी डायरेक्शन है ये। और अगर इसी तरीके से आप यहाँ पर इसको देखें डबल हेलिकल स्ट्रक्चर,
दोनों स्टैंड ऐसे नहीं आ सकते। तो एक्चुअली कैसे होगा, ये एक्चुअली बल्कि एक्सपेरिमेंट भी किया गया है इस चीज को वो साबित करने के लिए। मेजर एंड स्टार एक्सपेरिमेंट फॉर सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ एप्लीकेशन। इन दिस एक्सपेरिमेंट particularly they actually used N15 जो आइसोटोप है नाइट्रोजन का, वो उन्होंने यूज किया। नॉर्मल आइसोटोप कौन सा है नाइट्रोजन का? N14 है। तो आप उसका N15 आइसोटोप यूज करें। इसका मतलब क्या है कि उसके न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा आइसोटोप है, नया एलिमेंट नहीं। सो दैट मींस एक न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा है। अगर न्यूक्लियस में एक न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा है तो हैवी हो जाएगा, वजनी हो जाएगा, बिकॉज जो उसका एटॉमिक वेट है दैट इज एक्चुअली ड्यू टू न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन जो न्यूक्लियस के अंदर है। तो अगर एक न्यूट्रॉन ज़्यादा तो हैवी हो जाएगा। तो उन्होंने N15 जो उनकी वाला आइसोटोप यूज किया स्टार्ट में, और बाद में उन्होंने ये देखा कि ये है सेडिमेंटेशन से आपको देखते हैं ये है नीचे आ रहा है। आफ्टर द फर्स्ट राउंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन वही दरमियान में आया। दरमियान में क्यों आ गया? इसलिए एक हैवी प्लस एक लाइट चेन जो डीएनटीपीज यूज किए गए थे इस एक्सपेरिमेंट के लिए, दोज आर एक्चुअली नॉर्मल N14 डीएनटीपीज। सो इन नेक्स्ट राउंड ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पर एक N14 और N15 नाइट्रोजन 14 N15, तो ये वाला दोनों N15 है, ये हैवी है और ये क्या हो गया? ये इंटरमीडिएट है। ये देखो इसका जो वेट है वो इंटरमीडिएट हो गया। तो यहाँ पर एक नया बैंड ये हो गया, टेस्ट हो गया। ठीक है, सेकंड राउंड ऑफ एप्लीकेशन के बाद अब यहाँ पर अगेन क्या होगा? यहाँ पर हमारे पास दो N15 आते हैं, एक क्या चाहिए? नेक्स्ट राउंड ऑफ एप्लीकेशन में हमारे पास अगेन जो नई प्रोडक्ट बन रही है, चेंज बन रही है, वो यहाँ पर एक N15 नया आना चाहिए। 14 ही है बिकॉज 14 वाली स्टैंड टेम्पलेट यूज हो रही है, तो अगेन नेक्स्ट 14 ही आएगा ना। तो जो ये पहले 15 और 15 रहेगी। सो इसका मतलब है कि यहाँ पर इसका इफेक्ट डाइल्यूट होता जा रहा है, और नए जितनी भी स्टैंड्स बन रही है वो सारी कौन सी है? N14 वाली, नॉर्मल वाली। दैट मींस इनकी जो इंटेंसिटी है वो इनके जो वेट है वो लाइट है, वो ऊपर सेडिमेंट को सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस। ठीक है, सो दिस क्लास वन ऑफ द फाउंडेशन प्रिंसिपल्स experiments which prove the basis that DNA replication is actually semi-conservative mode of application. And semi-conservative mode of application, what does that mean? That means one strand will be used as a template and one strand will be newly synthesized. And how actually this process happens, we know that there is one strand which is called leading strand and the other strand is called lagging strand. ऐसा ही है। तो जो लैगिंग स्टैंड्स हैं वो छोटे फ्रैगमेंट्स की सूरत में बार-बार सिंथेसाइज होंगे, उनको हम क्या कहते हैं? ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। सो ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स मींस वो आपकी लैगिंग स्टैंड है, उसके छोटे-छोटे पीस वो सिंथेसाइज हो रहे हैं। ठीक है।